views of women living a hard and miserable life are neither centuries old views of a society nor are depicting the life of the tribes living in a jungle, but these are the views explaining the life pattern of the women living in Balochistan in 21st century. Outwardly, these women are living in 21st century, but actually they are facing the same problems what the women were facing centuries ago. Is it necessary that the women of Balochistan are destined to this type of life? Is it possible to bring changes in their life? Is it sure that a moment shall come when these decent, courageous, and self-respecting women will get their legitimate right in our society? Determining drastic changes in the measurable condition of the life of women, Hard Balochistan, with the help of Commonwealth Foundation, launched a unique project in two districts of Balochistan, that's Khuzdar and Mastung, with the purpose of the capacity building of women and empowering them in politics, and to expose and improve their political struggle and pave the way of their leadership, as it is the first solid step securing all other rights of women. मोहम्मद वारिस शाहीन, प्रोजेक्ट मैनेजर हार्ड बलूचिस्तान खुजर। कोई भी मुआशरा उस वक़्त तक तरक्की का ख्वाब कभी नहीं देख सकता जब तक कि ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मुतहर्रिक किरदार अदा न कर रही हों। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ख़वातीन हर शोबे में मर्दों से बहुत पीछे हैं। इसलिए जब हमें कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला जिसके ज़रिए हमने ख़वातीन की सियासी मैदान में किरदार में इजाफे और एम्पावरमेंट के लिए किरदार अदा कर सकें, तो हम अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करने की ठानी। गो के शुरू में हमें बहुत सारे रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर चूँकि खुजदार और मस्तूम दोनों अजला में हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और जहाँ बहुत से कम्युनिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक हमारी जड़ें काफ़ी मजबूत थी, तो हमने अपनी हिकमत अमली के ज़रिए उन तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया और आज नतीजा ये है कि यहाँ की ख़वातीन न सिर्फ ये कि आज यहाँ की सियासत में एक मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही हैं, बल्कि वो पहले से ज़्यादा बाशऊर और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और हसूल के लिए मुतहर्रिक हैं। It is one of the basic elements that the assistance and the cooperation of the community is inevitable for the success when the project is going on. Hard Balochistan is lucky enough to enjoy this advantage in both societies, but it's also a fact that we were challenging the centuries-old customs and rights of the area when we resolved to start working in an area where the women are confined only to the compound of their houses, with the activities inside kitchen only. The active political role of women was unthinkable, at the very outgoing of women was considered as an unacceptable action. So it was not less than a hard campaign to prepare women in a hard society to come out of home, compound and play a political role effectively.
So the very first step to ensure women participation in political process was to get their computerized national identity card or CNIC so that they could be registered as a voter. Unfortunately, a majority of women in Balochistan, particularly in Khuzdar and Mastung districts, was deprived of the basic right of getting CNIC, even if there was a few with CNIC, but they were not registered then as a voter. But Hard Balochistan, with the help of Young Women Democratic Group, activated the members of Women Political Resource Center and formed informal district assembly in both districts and ensured the issuance of CNIC hitherto deprived of it, and registered thousands of women as a voter with the cooperation of ECP or Election Commission of Pakistan and NADRA. ज़िले खुज़दार में यहाँ के लोगों को सबसे पहले जिस मसले का सामना रहा है वो है शनाख्ती कार्ड जैसे बुनियादी डॉक्यूमेंट तक ख़वातीन की रसाई और फिर उनकी सही मानों में वोटर लिस्टों में इंदराज कराना। शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई भी खातून हुकूमत की दी गई किसी भी सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकती थी, खुजा ये कि वोट डाले और सियासी अमल में हिस्सा डाले। हार्ड बलूचिस्तान खुज़दार के इस प्रोजेक्ट का मेरी नज़र में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि उनकी मेहनत और शऊर आगाही देने की वजह से हज़ारों ख़वातीन नादरा के ज़रिए पहली बार शनाख्ती कार्ड बनवाकर फिर वोटर लिस्टों में इंदराज करवाए, जिसकी वजह से उन्हें यूँ समझे कि पाकिस्तान के बाकायदा शहरी बनने का रुतबा हासिल हुआ। उन्हें सियासत में हिस्सा लेने और उसमें किरदार अदा करने का मौका हासिल हुआ है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिसके असरात बाकायदा तौर पर 2018 के इलेक्शन में ही महसूस किया गया। इस वक्त पहले की निस्बत ख़वातीन वोटर लिस्टों में इंदराज बहुत ज़्यादा है और ख़वातीन अब पहले की निस्बत शनाख्ती कार्ड, वोट कास्ट करने और सियासत में शिरकत की अहमियत को समझ चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्शंस में ख़वातीन की वोटिंग टर्नआउट काफ़ी ज़्यादा होगी। The second step of this phase was the establishment of Women Resource Center or WRC. The team of Hard Balochistan had fully realized that only the acquiring of CNIC would not be enough to serve the purpose, but it's also necessary to expose political awareness among the women and ensure their political training in this regard. Keeping in view it, Women Political Resource Centers were established. The new phase of the project was to offering an opportunity to the conscious and active women to see how the political process takes place and how the political representatives table a resolution and discuss the problems and reach to their solutions. For this, the informal district assembly was established with the purpose to make women know as to how plan the projects for women interest and get them approved. मैं तबस्सुम नादिर, जब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना तो मेरा पहले ये ख्याल था कि क्या हमारे ज़िला में भी ऐसा होना मुमकिन है। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मुझे भी किसी न किसी तरीके से सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिले। ख़वातीन हमारी आबादी का 50% हिस्सा है, मगर फैसला साजी में इनका हिस्सा 0 के बराबर है। हमारे बारे में तमाम फैसले चाहे वो घरों में हों या ईवानों में मर्द कर रहे होते हैं। जब मैं इनफॉर्मल असेंबली कर बनी तो मुझे पहली बार ये मालूम हुआ कि किस तरह इन ईवानों में मसाइल पर बहस होती है, किस तरह हमारी किस्मतों के बारे में फैसले होते हैं। अब मेरा अज़ीम ये है कि मैंने एक ना एक दिन हकीकतन इन ईवानों में पहुंचना है और वहां पहुंचकर औरतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाम फजीला शाहीन है। ज़ाहिर है ये सब कुछ हम सब के लिए नया था,
लेकिन इसके साथ साथ ही उम्मीद और मायूसी की एक मिली जुली सी एक कैफियत थी, क्योंकि ट्रेनिंग के लिहाज से तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन ख़दशा ज़रूर था कि क्या घर वाले सरगर्म सियासत में आने के लिए रुकावट तो नहीं बनेंगे, और अगर उनकी तरफ से इजाज़त मिल भी गई तो फिर वो मर्द हजरात जो सियासत पर छाए हुए हैं और सदियों से जिनकी सियासी मैदान में अजारादारी कायम है, वो किस हद तक हमें बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जब हमने गैर रस्मी डिस्ट्रिक्ट असम्बली में अवामी बिलखुसूस औरतों के मसाइल की निशानदही करके इन्हें ज़ेर बहस लाया और फिर इनके हल के लिए आवाज़ बुलंद की और सियासतदानों के साथ होने वाले मुख्तलिफ़ नशिस्तों में गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, तो फिर वो सब इस बात के कायल हो गए कि ख़वातीन भी सियासी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है, और ये सब कुछ हार्ड बलूचिस्तान और कॉमनवेल्थ फाउंडेशन की वजह से मुमकिन हुआ। Generally, though, there are always specific seats for women at all levels in districts, provincial, and federal assemblies, but we rarely see women getting their tickets from the political parties to contest for general seats. There are many factors behind it, which are discrimination against women, tribal rights, and customs and social restrictions. The acceptance of the society to the direct participation in politics shows that the society is now convinced about the talent of women, that they can do well shoulder to shoulder with men even in politics. Realizing this fact, the team of Hard Balochistan started a series of meetings with the leaders of different political parties with the purpose to convince the party leaders not only to accept the role of women in the domains of politics but also play their role to promote this talent of women. But it was not an easy as it sounds, generally because there were countless difficulties and major obstacles. We also tried to know about the reaction of political parties in this regard, whether they welcome this major change or otherwise. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अशरफ अली मेंगल, जनरल सेक्रेटरी नेशनल पार्टी डिस्ट्रिक्ट खुजदार, मरकज़ी चेयरमैन रोशनाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि पहली दफ़ा जब हार्ड बलूचिस्तान के नुमाइंदे हमारे पास आए तो मुझे इनकी बातों पर कोई अच्छा खासा यकीन नहीं आया। ये कैसे मुमकिन है कि हमारे कबाइल की क़दामत पसंद माशरे में ख़वातीन को इतना एम्पावर किया जाए, वो न सिर्फ़ ये सियासी अमल को बखूबी समझे बल्कि उसे इसमें भरपूर हिस्सा भी ले। मेरा तो ये ख्याल था कि उन्हें प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए ख़वातीन का ताउन ही हासिल नहीं होगा, मगर जब हमारे मुलाकात इन ख़वातीन से हुई जो उनके साथ गैर रस्मी असम्बलीज़ में काम कर रही थी, तो हम वाकई हैरान रह गए कि इनके सियासी शऊर, सियासी अमल के बारे में उनकी मालूमात और उनका जज्बा सब कुछ हैराकुन था, मगर मजबूर हो गए कि उन्हें इनके सिर्फ़ अपने साथ शामिल करे बल्कि उन्हें पार्टी के अहम ओहदों पर मुकर्रर करके फ़ैसला साजी में शामिल करे और इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका फराहम करे। ये हार्ड बलूचिस्तान का एक ऐसी कामयाबी जिसका सबसे पहले कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। शुक्रिया हार्ड बलूचिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। The team of Hard Balochistan was not alone in this journey, but it was enjoying the cooperation and assistance of many stakeholders, including local NGOs, public institutions, and honorable members of the society having the feelings to do good for the welfare and uplifting of the society. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आलम इब्राहिम। ये प्रोजेक्ट अपनी नौयत का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट था। हमारे इलाकों में आज तक किसी ने शायद इस बारे में सोचा भी न था। इसलिए जब हार्ड बलूचिस्तान की टीम ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने अपने तमाम साथियों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन की हालत में तवील मुद्दती तब्दीली और इनके हकूक़ की फराहमी की तरफ इस प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन जितना है, इसे शायद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आज यहाँ की ख़वातीन ज़्यादा बाशऊर, ज़्यादा मुतहर्रिक
और सियासी अमल में ज़्यादा शामिल हैं, मगर इसके पीछे हार्ट बलूचिस्तान की टीम ने जो मेहनत की वो भी बेमिसाल है। तमाम माशरती कबायली रवायात से टक्कर लेना, लोगों को कायल करना, ख़वातीन को इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए कायल करना बिल्कुल भी आसान न था, मगर ये टीम की मुसलसल मेहनत और लगन ने इसे मुमकिन कर दिखाया। The very foundation of a change has been laid, which has brought new rays of hope appearing on the political horizon for women. Definitely, it is not an easy task to lay the foundation of a major resolution in a very short time, but a new destination comes after every difficulty. The very dream of women political empowerment has now been converted into a reality, and thus it can easily be hoped that now the women of today would be the political power of tomorrow, ensuring gender equality and uprooting the very impression of women fraternity and burying the discrimination against women once for all. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमरी है। मेरी उम्र 40 साल हो गई, मगर मैंने आज तक वोट नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। इस प्रोजेक्ट की वजह से ना सिर्फ मुझे शनाख्ती कार्ड मिला, बल्कि पिछले इलेक्शन में मैंने पहली बार वोट भी डाला। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी पाकिस्तान की शहरी हूँ और मेरी राय भी अहमियत रखती है। शुक्रिया हार्ट से।